सारी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो पाइथन को और भी एनरिच करते हैं सो दैट वी कैन हैंडल अ मोर sophisticated task by using a lesser code. And the name given to this language Python based on this comedy series. And Python is a high level general purpose programming language. It can be used for writing any type of program. The Python program is compiled into the bytecode, the concept that I have discussed with you. So this program is compiled to the bytecode, and this bytecode is executed by Python virtual machine, the PVM, the environment which able to execute this Python code. And Python can be used as a scripting language or a web application, or you can write any type of uh, program by using the GUI interface also. तो हम पाइथन को वेब एप्लीकेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जीओ इंटरफेस भी डिजाइन कर सकते हैं। फर्दर जो हम डाटा साइंस से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, डाटा साइंस में भी हम इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। एंड बिग डाटा में भी आर या पाइथन को यूज किया जा सकता है। तो पाइथन है all the basic concepts, all the basic structures that are available in any other language like the C, C++, or a Java. Python also have the variables, have the literals, have the control structures, have the functions, the modules, object-oriented concepts. All the concept of a C, C++, or a Java is also available in this Python. So Python has a strong structuring construct. इसमें वो सारे कंसेप्ट अवेलेबल हैं जो किसी नॉर्मल लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। सो इट हैज नेस्टेड कोड ब्लॉक्स, द concept of a function, classes, modules, and packages. And all these concepts you will learn in the coming sessions. And we can also use the object-oriented language to write clear and the logical programs. Python is an interpreted language, but in a previous slide, I have told you that it is compiled to the bytecode, but here it is written as it is an interpreted language. So I have already told you that the program is compiled into bytecode at this point. Compiler is used, and this bytecode is executed, and at this point interpreter is used. So this is the PVM. So actually the PVM uses the concept of interpreter. Python is available as a free and open source, and Python can run on a different type of platforms like the Windows, Linux, or Unix. Even the Python run on your Android operating system also. We can have a different varieties of a Python. So the C Python, J Python, PyPy, Stackless Python, the Iron Python, but we are going to learn this Python 3. So the compiler provided by this particular website. So we are going to use this particular compiler, and we will see how we can download the compiler from this particular website and how we can install it on our system. Then we will see how a basic program can be written by using this compiler.
So this is the website from which we can डाउनलोड द कंपाइलर। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप पाइथन के कंपाइलर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट वी सी हाउ दिस वेबसाइट कैन बी यूज्ड। python.org। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ से आप पाइथन का कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज नॉट द ओनली वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द पाइथन कंपाइलर। तो if you want to use the PyCharm or the Android or any other ID, you are free to use that। but हम यहाँ पर ideally integrated environment को use कर रहे हैं because this environment requires the lesser resources। तो अगर आपके पास सिस्टम है जिसमें मिनिमम रिसोर्सेज हैं तो भी ये इजीली उस रिसोर्सेज पर वर्क कर सकता है। बट अगर आपके पास बेटर सिस्टम्स हैं, 8 GB रैम के साथ अगर सिस्टम्स अवेलेबल हैं तो आप एंड्रॉयड या एनाकोंडा वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एनाकोंडा नियर अबाउट 1.5 GB का सोर्स फाइल है, डाउनलोड करना होगा एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट। बट आइडियली जो है वो नियर अबाउट 20 और 30 MB का फाइल है। so it can be easily downloaded and can be installed with a minimum resources। तो हम आइडियली को देख रहे हैं इसे कैसे इंस्टॉल या डाउनलोड किया जा सकता है। So in case of a download, we have this version 3.10. 3.10. This is the version that we are going to download and install on our system। Python 3.9 plus cannot be used on Windows 7। तो अगर आपके पास विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 3.9 से पहले का वर्जन आपको इंस्टॉल करना होगा, लाइक द 3.7 और द 3.9 वर्जन। बट विंडो 10 या विंडो 8 अगर आपके पास है तो आप ये करंट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। आप में कोई ऐसा भी है क्या जिसके पास विंडोज 7 है? आप लोगों में किसी के पास विंडोज 7 का सिस्टम है क्या? यस सर, मेरे पास है। हाँ, तो फिर विंडोज उस केस में आपको विंडोज ये 3.8 वर्जन इंस्टॉल कीजिएगा, 3.7 या 3.8। जी ओके सर। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताइएगा फिर, ठीक है? उसको फिर इंस्टॉल कर देंगे, रिमोट पे उसको कनेक्ट जी करके जी उसको इंस्टॉल कर। लेकिन ओके। अगर विंडो 8 या 10 है तो आप इजीली इस फाइल को क्लिक कर दीजिए, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और ये फाइल 27 MB का है, 27 MB। बट मैंने आपको बताया अगर आप एनाकोंडा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एनाकोंडा कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए आपको नियर अबाउट 1.5 GB फाइल डाउनलोड करना होगा। तो ये फाइल हमने डाउनलोड कर लिया एंड देन जस्ट आफ्टर डाउनलोडिंग इट जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल। और ये आपके सिस्टम पर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। सो in my system it is already installed, so I'm not going to install it। but install करने के लिए यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑप्शन हैं, इंस्टॉल नाउ एंड कस्टमाइज। तो हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं करेंगे, वी क्लिक ऑन द कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। इन केस ऑफ कस्टमाइज इंस्टॉलेशन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फोल्डर में पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर
कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन यूज करेंगे। तो इस ऑप्शन को क्लिक करने से पहले यहाँ पर ऐड पाइथन 3.10 टू द पाथ इसे भी क्लिक करना होगा। तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन को क्लिक करने से पहले ये दोनों ही ऑप्शन सिलेक्टेड होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमने क्लिक कर लिया, एंड इन दिस केस ऑल द ऑप्शंस आर selected, and then click on next. So in this case, if you have multiple users on your system, you can click this. अगर आपके सिस्टम पर एक ही यूजर है, बिकॉज नॉर्मली पर्सनल सिस्टम है तो एक ही यूजर होता है, बट इन केस ऑफ ऑफिस एनवायरनमेंट वी मे हैव अ मल्टीपल यूजर्स, तो आपके नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल फॉर और यूजर सेलेक्ट किया जा सकता है। एंड ऑलवेज confirm that add python to environment variable select होना चाहिए। So this is the location where we are going to install, but this is the very long path. So instead of this, you can create a customized folder on your PC, either on the in my case I have the C and the D drive. तो C या D drive पे किसी भी लोकेशन पर आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के नाम से, और उस फोल्डर में अकॉर्डिंगली पाइथन को इंस्टॉल कर देंगे, सो दैट दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज इजीली एक्सेसिबल। So instead of a long name like this, C user शिवलोक ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन, हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इस फोल्डर के अंदर हम अपने पाइथन को इंस्टॉल कर देंगे। दिस 310. So this is the location where I want to install. So this is the folder that I have selected. So now my Python is going to install in this particular location. इस particular location में हम Python को install कर सकते हैं। So while installing it, select customize installation, select all these checkboxes, and in the customize installation, click next and then select the path. हाँ संदीप बोलिए। अच्छा सर, ये जो इंस्टॉलेशन इससे जो पहला स्टेप था उसके अंदर जो नीचे चेक बॉक्स आ रहे हैं वो मेरे वाले जो सेटअप है उसमें नहीं शो नहीं हो रहा है। ये दोनों? हाँ जी सर, ये क्या लिखा है, इंस्टॉल लॉन्च फॉर ऑल यूजर्स रिकमेंडेड, और फिर नीचे लिखा है ये दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे मेरे पास। यही 3.10 ही इंस्टॉल कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, यही है। ये 64 बिट ही है? हाँ जी सर, 64 ही है। अच्छा, कस्टमाइज में जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये हाँ ये है ऑप्शन, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये है सर, ये हाँ ठीक है, फिर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ वो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है वो ये ऑप्शन के इक्विवेलेंट है, दिस ऑप्शन ठीक है सर। ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल। और यहाँ पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फोल्डर सी या डी ड्राइव पे जहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्टेप में किसी का कोई क्वेरी है अभी पूछ लें। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस फोल्डर जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल बटन और ये आपका पाइथन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। So installation will just take 5 minutes, 1 minute to install and maximum 1 minute to download and 2 minutes to install. So within the 5 minutes you are able to install the IDLE environment on your system. So this is how we can download the Python environment and how we can install it on our system. So this is the website on which this content is available, this compiler is available. From this, just download the content, the Python version,
currently the Python version is 3.10. तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो दिस सेकंड ऑप्शन, दिस वन, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन. You need to select just 2 options. तो दोनों ही चेकबॉक्स सेलेक्ट होने चाहिए और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन हम सिलेक्ट करेंगे. इन दिस केस just provide a folder name where you want to install your Python. And remember that this location is checked. यहाँ पर ये checked होना जरूरी है. This Python to your environment. And then you can just click on the install button or within a fraction of minute ये आपका Python install हो जाएगा. So how can we see whether the Python is properly installed and working or not? So in case of this, we can write IDLE. So this is the IDLE Python that is installed in my system 3.8, but currently 3.10 is available. तो आप जस्ट इस IDLE पे क्लिक कर दें. और ये पाइथन का IDLE स्टार्ट हो चुका है. सो इफ यू आर ऑन द यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चेक करना चाहते हैं. सो इन दिस केस यू कैन राइट पाइथन. अगर ये प्रॉपरली पाइथन वेरिएबल सेट हुआ है, एनवायरमेंट वेरिएबल प्रॉपरली सेट हुआ है, तो जस्ट टाइपिंग अ पाइथन विल वर्क. अगर एनवायरमेंट वेरिएबल प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है तो पाइथन भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा. So in this case, you can write any code just to check, or so you can write or any code here just to check whether this is working or not. So if you want to come out of this, just write code. So this is the Python that we have run on the command prompt. तो Python को हम command prompt पे run नहीं करते हैं. We have just checked here whether our Python is properly installed with a environment variable or not. अगर यहाँ पर Python का variable environment variable set नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर Python भी work नहीं करेगा. In that case आपको उस particular folder में जाकर ही Python को run करना पड़ता है. तो पाइथन पे वर्क करने के लिए हम यहाँ पर IDLE पाइथन पे ही वर्क करते हैं. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट वेयर वी कैन राइट अ प्रोग्राम. ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं. So at this point you can again write 3.5. This is 9. You can write print. तो जो भी कोड आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर टाइप कर सकते हैं. लाइक n इक्वल टू दिस अजय वर्मा. तो हमने यहाँ पर जो अजय वर्मा मैंने आपको बताया था, दिस इज एन लिटरल दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ n. तो हमने n में अगर स्टोर किया है तो व्हेनेवर वी राइट n, it will automatically extract the data that is stored in the n variable. तो n के अंदर जो भी स्टोर हुआ है उसका डाटा वो अकॉर्डिंगली फेच कर लेता है. सिमिलरली इफ वी राइट a इक्वल टू 100,
b equal to 20. So in this case, if I want to calculate the sum a plus b, I can write a plus b. So it will fetch the data stored in this a variable and the data stored in this b variable, and accordingly we are able to calculate the sum of these two variables. तो किसी भी वेरिएबल में डाटा को स्टोर किया जा सकता है और नेम हम कुछ भी दे सकते हैं. सो एनी नेम कैन बी गिवन. नंबर 1 is 100. Number 2 is 200. So any name you can give to this variable. But there is certain rule you have to follow while giving a name to the variable. हम कोई भी नाम दे सकते हैं, बट वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए भी कुछ नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज दैट नेमिंग कन्वेंशन? Only capital A to Z, small a to Z, 0 to 9, and this underscore sign is allowed. This is the allowed character set. This is the allowed character set for naming the variables. So you can use any of the character set. So you can write number 4 equal to this 100. Number 8 equal to this 20. So this is allowed. N, O, and 8. But if you write N, O minus 8 equal to 20, this is invalid. This is invalid. If you write number space this 8, 20, this is again invalid. Spaces हाइफन अलाउ नहीं है. तो जो अलाउड सेट है केवल आप उन्हें यूज कर सकते हैं. लेट वी सी हियर. नंबर 4 इक्वल टू दिस 100. नंबर 8 इक्वल टू दिस 20. नंबर minus 8 hyphen 8 equal to this 20. This is an invalid. Space 8 equal to 20. This is again invalid. Space या hyphen allow नहीं है. You can use uppercase alphabet, lowercase alphabet, 0 to 9 and the underscore sign only. So अगर आप लिखते हैं number underscore 8 equal to 20, this is an allowed variable name. So we have number 1, number 2, number 4, number 8, and this number underscore 8. So in this case, if I write number 4, if I write number 4, so number 4 is a valid variable name. तो नंबर 4 यहाँ पर वैलिड वेरिएबल नेम है और हमने यहाँ पे नंबर 4 ही लिखा है. सो इन दिस केस इफ आई प्रेस द एंटर की हियर, this compiler showing a error message that number 4 is not defined. Number 4 is not defined. जैसे a वेरिएबल यहाँ पर है और यहाँ पे अगर a लिखते हैं a तो आ रहा है, बट अगर हम कैपिटल A लिखेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है नेम A इज नॉट डिफाइंड. इसका क्या मीनिंग? आप में कोई बता पाएंगे कि स्मॉल a तो आ रहा है बट कैपिटल A नहीं आ रहा है. क्या रीजन हो सकता है? सब
Because we did not assign a value for capital A, sir. Because this language is case sensitive. In this language, the variables are case sensitive. Okay. You are correct that we have not passed the value for the capital A. It means language is case sensitive. It means small a and different capital A are two different variable names, because small a and capital A are two different variable names. They are not same. They are not same. It means similar to the C, C++, Java or C# language, Python is also case sensitive. Python is also case sensitive. So this is how we can define our variables. But while writing a program, we normally do not write the program on this prompt. This triple greater than sign, is the prompt here. Like the C prompt, जैसे DOS prompt पे C आता है, वैसे ये Python कंपाइलर का prompt है। और यहाँ पर हम जस्ट कोई कोड को चेक कर सकते हैं, कोडिंग यहाँ पर नहीं लिखते। So where we can write a coding? So in this case, we have the file menu, edit menu, cell, debug option. So in this case, just click on the file, new file. यहाँ पर फाइल के अंदर न्यू फाइल पे आप क्लिक करें। So this is the two separate window here. This is the main window, the compiler window, and this is the code window. And in this case, we can write any code like A equal to 10, B equal to this 20, then calculate the C, A into B, then print the data of C. So we have written 4 lines here, and I want to execute all these lines in a single go. So how you can execute it? So this is the file where you can write your script. ये एक फाइल है जहां पर आप अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे, और ये प्रोग्राम्स कौन से हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के कोड, जो पाइथन के कोड आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। तो ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होंगे, कंपाइल कैसे होंगे? सो बिफोर क्लिकिंग ऑन द रन मॉड्यूल और F5, रन मॉड्यूल या F5 को प्रेस करने से पहले ये रन ऑप्शन कहां पर आ रहा है? इस एडिटर विंडो में, इस मेन प्रोग्राम में नहीं है, इस एडिटर विंडो में है। और ये एडिटर विंडो कैसे आया? फाइल के अंदर न्यू को क्लिक करने से। इन दिस केस, इफ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, जैसे आप रन मॉड्यूल क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना होता है। तो इवन इफ यू क्लिक ऑन द रन मॉड्यूल, ये आपसे पहले फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा। तो इट्स बेटर टू सेव द फाइल फर्स्ट। तो फाइल को फर्स्ट सेव कर लीजिए। So we are going to save this file, और ये फाइल जिस फोल्डर में पाइथन एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां पर आपने इंस्टॉल किया है डी ड्राइव पे पाइथन, सेम वही फोल्डर लोकेशन यहाँ पर आ जाता है। बट अगर आप डिफरेंट फोल्डर लोकेशन में अपने कंटेंट को सेव करना चाहते हैं तो आप अपने फोल्डर लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। बट इन माई केस, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टोर माई फाइल इन द सेम फोल्डर। So in this case, I am just going to write 05 09. So this is the file that I am going to save. और जो फाइल आप क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम .py है, .py पाइथन कोड। सो इन दिस केस आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट, और ये हमने सेव कर दिया। सेव करने से ये देखिए यहाँ पे इसका लोकेशन नेम शो कर रहा है, डी ड्राइव पे पाइथन 38 में 0509 p1.py। दिस इज द नेम ऑफ द फाइल। और इस फाइल को रन करना चाहते हैं
click on the run, then run module. तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन किया तो 10 into 20 200 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो हम इस कोड को यहाँ पे रन कर रहे हैं, बट इसका जो कोड है ये मेन कंपाइलर विंडो में ही यहाँ पर शो हो रहा है। if we are going to change this data, अगर हम इसे चेंज कर दे तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी डिफरेंट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो जब भी आप कोड को रन करेंगे इसका आउटपुट इस पर्टिकुलर विंडो में ही यहाँ पर डिस्प्ले होता है। So if you want to give some proper message like this, result, then see. So this is the result equal to 100. This is the result message, and this C, the product of these two numbers, the 100. So we get this proper message with this data. तो जो भी प्रोग्राम आपको टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं फिर से एक कोड और लिख रहा हूँ, फाइल, न्यू फाइल। मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर से पाइथन को स्टार्ट करते हैं। दिस आइडियली और यहाँ पर फाइल, न्यू फाइल। अब हमारे पास 2 सेपरेट विंडोज आ गए हैं। ये हमारा मेन कंपाइलर का विंडो है और ये कोडिंग विंडो है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं n इक्वल टू तो ये हमने मैसेज प्रिंट में स्ट्रिंग डाटा, नंबर डाटा दोनों को ही प्रिंट किया जा सकता है। सो इन दिस केस आई हैव पास अ मैसेज विद इन सिंगल कोट। जब भी कोई मैसेज देना है आप सिंगल कोट में दे सकते हैं और ये एक वेरिएबल नेम है। दिस इज द वेरिएबल नेम दैट वी हैव पास्ड। इन दिस केस द डाटा stored in this variable is going to be printed here। और ये एज मैसेज है because we have given this within the single quote as a string और यहाँ पर हम वेरिएबल पास कर रहे हैं तो इस वेरिएबल का डाटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो फर्स्ट हमें इस फाइल को सेव करना होगा। So in this case we are just going to save this file। Then click on run module। तो यहाँ पर नेम अजय वर्मा इज 34 डिस्प्ले हो रहा है। सो इन दिस केस इफ आई राइट लाइक दिस, मैंने n और a दोनों को ही सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर दिया। इस केस में क्या आउटपुट आएगा? नेम n, एज a। तो n और a दोनों ही मैंने सिंगल कोट्स में दे दिए। इट मीन्स वो एक मैसेज बन चुका है, अब वो वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल का डाटा जब भी लेना है वेरिएबल के साथ इस कोट्स को हम यूज नहीं करते हैं। जब भी वेरिएबल का डाटा प्रिंट करना हो हम उसे सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं करते हैं। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर, how we can access the data of a variable and how we can print the message. Next is, in this case, suppose I have written like this print, some space, then print, print, then space, then print. So this is the similar code that we can write in any language। अगर आप C++, Java में लिखे तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है।
But in case of a Python, if you try to run this code, you will get an error message. और ये error message क्या है? Unexpected indent. Unexpected indent. यानी कि जितने भी कोड हैं वो एक ही लाइन में स्टार्ट होने चाहिए, सारे कोड एक ही पर्टिकुलर कॉलम में होने चाहिए। तो हम सभी को एक ही कॉलम में कर देते हैं। अब तो सब एक कॉलम में हो गए, सभी को हमने 2 नंबर कॉलम से स्टार्ट कर दिया। स्टिल वी गेट एन एरर, क्योंकि सबसे पहले लाइन कॉलम नंबर 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर कॉलम नंबर 1 पे स्टार्ट हो रहा है तो बाकी के लाइंस भी कॉलम नंबर 1 से ही स्टार्ट होंगे। तो इंडेंटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ यूज किए जाते हैं, वो आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। तो जब भी इंडेंटेशन एरर आ रहा है, इट मींस you have given some spaces in the beginning of sentence। अपने जो सिंटेक्स लिखा है वहां पर अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली एरर आएगा। सो इन दिस केस इफ आई राइट लाइक दिस, मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दी, तो क्या अभी भी एरर आएगा या नहीं? कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है, बिकॉज विद इन द ब्रैकेट्स यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ मैसेज। यहाँ पे स्पेसिस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, बट ये लाइंस सेम कॉलम पे स्टार्ट होना चाहिए। इफ वी हैव मिस्ड अ सिंगल कोट, हमने सिंगल कोट स्टार्ट तो किया बट यहाँ पर मिस हो गया। एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल, तो जब हम स्ट्रिंग लिटरल को स्कैन कर रहे हैं, मीन्स जब कंपाइलर स्कैन कर रहा है तो स्ट्रिंग स्टार्ट तो हुआ बट उसका एंड नहीं आया। कंपाइलर का कंपाइलर ने स्ट्रिंग का एंड सर्च नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल। जब भी ये मैसेज आ रहा है, इट मींस योर क्लोजिंग apostrophe is missing। So this is the proper message. Now, if you want to write 2 lines, 2 commands on the same lines, हमने ये एक लाइन लिखा और ये सेकेंड लाइन, ये सेकेंड कमांड और इसका रिमेनिंग कमांड। इस केस में अगेन जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, you will get an error message. In case of a Python, only one instruction per line is allowed. Only one instruction per line is allowed. If you want to write multiple line, then you have to use this semicolon. अगर आप multiple instruction को एक ही लाइन पे लिखना चाहते हैं, in that case you have to use this semicolon as a statement terminator। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रॉपर आउटपुट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हमने यहाँ पर नेम डिस्प्ले कर दिया, एन आ गया, एज डिस्प्ले किया, एज आ गया, बट नेम के आगे अजय वर्मा और एज के आगे 34 डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हमने इसे सेपरेट लाइन में लिखा तब भी एक के नीचे एक आ रहा है। If we are writing this two statement on a single line, even then we are getting the same output. We are getting a same output, but I want output on a same line, like name Ajay Verma is 34. How we can display that? So in this case, this has
character is used to make the line comment. Comment means वो लाइन कंपाइल नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये लाइंस आपकी कमेंट लाइन में कन्वर्ट हो गई. सो कमेंट मीन्स you can write any description related with the program, and if you want to convert a particular statement into a comment, you can just write a hash sign in the first column. फर्स्ट कॉलम पे आप हैश साइन लिख देंगे, इससे ये दोनों लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होंगी. अब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? अजय नेम, अजय वर्मा. सो हाउ वी कैन राइट दैट? Name and this n. This age and this age. तो ये नेम अजय वर्मा, एज 34. यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज पास करके आप उसे एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं. तो दिस इज द नेम एंड दिस इज द वेरिएबल हैविंग द एक्चुअल नेम स्टोर्ड इन इट. इस n के अंदर जो डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और सिमिलरली a में जो डाटा है वो एज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. सो वी आर एबल टू शो द डाटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. अगर आप सिंपल प्रिंट से करते हैं तो सिंगल लाइन में रिजल्ट नहीं आएगा, बट इफ यू वांट टू शो मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल लाइन, यू कैन यूज दिस प्रिंट मेथड. तो प्रिंट से आप मल्टीपल डाटा को सिंगल लाइन पे शो कर सकते हैं. Now again, I'm going to close this code. Now this is length of a rectangle is 10. Width of the rectangle is 5. And I want to calculate the area. This length into this width. And now I want to display. Print area of rectangle is this area. फाइल को सेव कर देते हैं. Area of rectangle is 50. Area of rectangle is 50. तो यहाँ पर प्रॉपर मैसेज हमारा डिस्प्ले हो रहा है. Now I want to show the लेंथ एंड विड्थ आल्सो. इसमें हम लेंथ और विड्थ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो कैसे डिस्प्ले होगा? लेंथ और विड्थ भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं. लेंथ और विड्थ कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे? सर L, W लिख कर दे. अगर हम L, W लिख दें तो आ जाएगा. यस सर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10, 5, 50. लेकिन ये 10 क्या है और 5 क्या है? This is the length and this is the width. तो ये पहला मैसेज हो गया, कॉमा ये लेंथ हो गया, देन वेरिएबल, कॉमा ये विड्थ हो गया, कॉमा इज W, एंड देन दिस एरिया.
area of rectangle where length is 10 and width is 5 is 50. तो यहाँ पर जितने भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है उसके साथ उतने ही सिंगल कोट्स स्टार्ट होंगे और क्लोज होंगे. So in this case, area of rectangle with dimension, length and width equal to this. Area of rectangle with dimension, length 10, width 5 equal to 50. तो ये प्रॉपर मैसेज हम यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं आफ्टर राइटिंग so much of messages, so much of single and quotes and the comma. सेकेंड मेथड है सेम आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए एरिया ऑफ this length this width this area. इसमें देखिए ये जो वेरिएबल है हमने कर्ली ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई किए हैं. एरिया ऑफ rectangle with length this, width this, area is this. तो आप यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना है चाहे दे सकते हैं. यहाँ पे मल्टीपल कोट्स स्टार्ट और क्लोज नहीं हो रहे हैं. In this case, we have a single message starting from this point and going up to this point. Single message. और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पास ऑन कर दिया है. जितने भी वेरिएबल्स हैं उसे कर्ली ब्रैकेट में पास किया है. Now let me see the output. So this is the output just because of this line and second output just because of the second line. और यहाँ पे अगर हम देखें तो L, W और एरिया एज इट इज डिस्प्ले हो गया. हमें क्या चाहिए? लेंथ 10, width 5 and area is 50. तो यहाँ पे देखिए पहले L, W और एरिया आ रहा था, अब उसकी जगह 10, 5 और 30 डिस्प्ले हो गया. So in this case, I have just put this F symbol. F symbol. F means formatted output. F means formatted output. So this is the message that I want to display, having some variables within the curly brackets, and if you want to fetch the value of that variable, you have to specify this F symbol. Just F symbol से आप डाटा को fetch कर सकते हैं. सिमिलरली जो हमारा नेम वाला कंसेप्ट था, n इक्वल टू दिस वर्मा and the age is this 30. Print F. Name is this n and age is this a. यहाँ पे जस्ट सिंगल लाइन में हमने ये कोड लिखा, नेम n एंड एज a, और a और n कर्ली ब्रैकेट्स में स्पेसिफाइड है. अब इसे हम रन करके देखते हैं. नेम अजय वर्मा, एज ये कंसेप्ट क्लियर हो पाया मैसेज डिस्प्ले करने का?
फॉर्मेटेड वे में